जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। Sound is clear? Can you hear me now? Yes, Prabhuji. Earlier the fan was little louder. Okay. So let's recite the Ishopanishad. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Evavashishyate. Nasam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjita magruda kasya svidhanam. I think almost all of you have by heart. Very nice. So just to recap, we are into the fourth part of the Ishopanishad, the praise of the devotee. 16, 17, 18, 19. Although Lord has everything, personal form, Brahmajyoti form, he is the master of everything, still one cannot understand him. And therefore the devotee has to pray to break through the curtain of Maya. Maya Javanika Chanyam. Kuntimani says that Namaste Purusham Twadhyam Ishwaram Prakate Param Alaksham Sarva Bhutanam Antar Bhairavas. Yes, Lord Krishna, you are the Supreme. Because you are present within the Uttara Zoom and you are outside. But people still can't understand like Duryodhana. Because Maya Javanika, the curtain of Maya, Ajna Dokshajam Avya, Na Lakshase Murdasha, Nato Natya Dharo. And how you can see that? Tata Paramahansana Munina Mamanat Bhakti Yoga Vidanatam Kadam Paschema. Only by the Bhakti. Therefore he is praying that you Hiranmayana Patrena, my Lord, please remove that curtain and give your mercy. Now he is telling that Om Krutosmara, my Lord, I have done so many nonsense activity, but by the mercy of devotees, I have done something good for your devotee. So please forgive me for my useless thing. I just remember something what I have done for your devotee. Om Krutosmara, Kritam Smara. And finally he says, yes, I have not done anything for you. But now I am surrendering fully at your lotus feet. Sarvadharman Parityajya. Because you are like sun. You are like a sun. Vayur Anilam Agnena Supataraya. You are like a fire, sun. He can take out all the impurities. So now I am doing Sarvadharman Parityajya. So my Lord, please bring me on the right path. Very nice prayers are there. Very nice. And Prabhupada has given very nice. So now, who is there to 18 and 19 verses? Any volunteer today? Kiran Prabhu? Are you there? Kiran Prabhu? Somebody was there, na? One person has told he went to Brazil. He told why to do. Hare Krishna Prabhuji, Danvat Pranam.
Prabhuji, I was supposed to give Shloka 17 today. Me and my wife, Dipakshi and Rahul. Prabhuji, you are on mute. How? You can give. Okay. Prabhuji, because Dr. Prabhu Babu Kiran, he mentioned that we have to prepare for 17 and 18. So my wife prepared for 18, but she is out with our daughter because she had one exam. So I'll go with 17. And Okay. if she comes back in time, she will join and she'll give the Okay. 18th. No worry, no worry. You carry on. Okay, I Prabhuji. mean, So, Deep. Yes, Prabhuji. Okay. So today I'll try my best with my limited knowledge that whatever I can explain in this shloka number 17, although it's like same like 15 to 18 where we pray to the Lord Krishna, and 17th shloka is one of them. So I'll recite the shloka now. Vayur anilam amritam athedam bhasmantam shriram om kratosmara kritam smara kratosmara kritam smara. So this is about the emotion, a very intense emotion that we all are going to die. So it is a prayer to the Lord by someone who is going to leave his or her body, a sadhaka, a devotee who is praying to the Lord for the mercy. So it is a prayer to the Lord to remember his services, his devotion, what we have done in this life. So the gravity comes out, the body fall. Let me come to you and remember what I have done for you. Srila Prabhupada explains in the purport the answer, the elaboration that will address the second thought that may come in our mind. Do we really need to tell the Lord to remember us and the services we have done for Him? Obviously, we don't have to. It is not pure devotional services because we are expecting some kind of favor from Krishna. Then why do we have to tell Krishna to remember us? The reason is Upanishad is not necessarily talk about the pure devotion all the times. At pure devotion level, we just call out that, please Lord, let me serve you. So in the purport, now we'll start with the purport that from 1 to 3, Srila Prabhupada explains that the material body is a foreign dress, that it must be given up. In karma, one thinks the body is source of great pleasure, and people dream about their own body, that how good looking we are, or uh, what good how people look at us, and they also fantasize somebody else's body, that uh, they get attracted to them and they fantasize them. So the idea is the body is a source of enormous pleasure. The pleasure is not just fantasy, but people think that the sole purpose of existence is to enjoy as much as they can. But in actual, we cannot live that fantasy. It's just a trap. All the senses in our body are going to drag us down to the sufferings. So we can say our body or the senses, which makes us forget about the true spirituality and our identity. It makes us filled with materialistic desires. In other words, we can say our body makes us forgetful of forgetfulness. So, for example, if we talk about a blind person, so if he knows he is blind, he will be careful. He will take care of while walking through the street and going anywhere. But if a blind person doesn't even know that he is blind, so eventually he will end up uh, hitting one place to another or bumping up in people or in other places.
eventually injured himself. So consciousness is very important. And in Jnana also, we demonize this body, our body. That what are we attracted to? Something which is filled with filth, like our stool, our urine, etc. So this is the uh, extreme rejection of the body. So in the path of bhakti, the focus is on utilizing the body to please the Lord, please Krishna. And how we can do that? Through mind, by thinking about Krishna. We should always thought about what he has done, how we can go closer towards him. With our tongue, we should speak about the Lord and chant the holy mantras. With our hands, we should serve in the feet of Lord Krishna. With ears, we should listen to Kirtana, we should listen to Bhagavatam, Bhagavad Gita, and the stories of Krishna. And with our feet, we should visit all the holy places which we can, rather than going to pubs and bars where you won't get anything closer to spirituality. And many such activities can be done through our body. And Srila Prabhupada also said that if you are not taking care of your body, means if you are not exercising enough, if you are not eating good food, if you are finding pleasure in liquor and all, in the future, even if you become enthusiastic, even if you then you think of to devote yourself in the feet of Krishna, you won't be able to, because your body will not support you for that cause. So we understand that our body is a foreign dress, and ultimately we have to give it up. We are dressed for, and we are dressed by our desires. So dressed by our desires means that whatever kind of desires we have at the time of death, we are going to get that kind of body in the future as well, in our future birth. For example, if a person likes to eat meat, he cannot just leave it for the purpose of becoming a Vaishnava. Then he will not get he'll not get the body of a human again. He might end up becoming an animal, a carnivorous animal. So this is how our desires, sculpt our future. This is how we are moved in the another birth with another kind of body. And we have to understand this, that my body and myself are different. If I get this body, it's all because of my past desires. And now it depends on me how I cultivate my desires in the present to get a body in the future as well. So now moving to next paragraph 4 to 5 of the purport. Srila Prabhupada explains that the best way to give up the body is by surrendering to the Lord. After utilizing it, we have to leave it. And at the time of death, the body will give us up. But because of our desires, we will not give up the body. But by the force of time, we get separated, means physically. The soul will leave the adobe, but psychologically and mentally and emotionally, we are still not ready to give it up. The attachment still persists. We can give up these attachments only if our subtle body is purified. Then only we can detach ourselves from our materialistic body. If we don't give it up, if we don't give up the attachments, we have to reborn. We have to take another body. So the art of living is the art of giving up. And how do we do it? It's through the process of bhakti. Now Srila Prabhupada also explains that how this whole art of leaving the body can be practiced only in the human form. All living beings are eventually going to die by the course of nature. But they cannot purify themselves. They do not have the intelligence, or I'll say consciousness, to pursue some higher reality. For example, if a lion, they will just think of, killing someone for their food.
They cannot think of leaving it and becoming a vegetarian for the sake of attaining moksha and all. So this is in the present what we have as a human body. We have to cultivate our thoughts and desires to get into the marg of bhakti. Now, in moving to paragraph 6 and 7, Srila Prabhupada explains the importance of last thoughts. At the moment of death, we will remember that what was our source of relief, or in what activities we used to feel better in when we are feeling stressed or in trouble. For example, some people they just like to watch TV or go outside to drink, to booze, and some just want to spend the time with their favorite person. And this is how these kind of activities become their greater shelter to get release from the pain or the stress. At the time of the death, the moment of death, we get traumatized as our subconscious mind will try to go towards or gravitate towards the source of our relief, like TV, or we'll remember that favorite person with whom we used to feel better. And this is the default instinct of mind to seek relief in something in which they are habituated, they are used to it. But the true shelter is Krishna, whereas other shelters are pseudo shelters, the false ones. And each of us, we carry our own pseudo shelters. But if we train ourselves to avoid such false shelters, instead consciously seek the shelter of Krishna, then at the moment of death, the mind will gravitate towards the Lord. The point here is that we have to train our mind in such a way that instead of going towards the worldly things, our mind goes towards Krishna for the shelter. In next paragraph, Srila Prabhupada further explains, if we have served Krishna throughout our life and at the time of death, we are not in a condition of remembering Krishna, then our Lord will still remember us. Krishna always notice our services, that we do it, and it is not that we want a reward. We love Krishna, that's why we serve him, not out of some reward. And Krishna is also so concerned about his devotees that he is ever waiting, ever willing, and ever working. Means he never gets upset uh, by just waiting for when his devotee is going to come to his services, or when he is going to become devotional towards him. He is ever waiting. And we cannot thank him enough in comparison to what Krishna has done for us. We just keep remembering that how much the Lord loves us. So we have to practice this from now on, because the present is all we have. Our mind is always keeps going to the past and the future. We keep been thinking about the past and keep worrying about the future. Because of this, we often don't utilize our present. Often we worry about what's going to happen in the future and lose what we can do in the present. Hence, because we are not doing anything in the present, we are losing our future as well. Some people think that tomorrow we will become a pure devotee. Let me finish this one task first, or one, I just want to enjoy this one thing first, and from tomorrow onwards, I'll be a pure devotee. But no such thing is going to happen. The moment of purification is now. If we think of it now, then only we can start it. Because distractions will always be there. And if we don't take action in today, it will keep lingering on. So we should start practicing our spiritual life now. In future, if we keep practicing more, we will develop these attitudes to serve Krishna. Our spiritual advancement, our spiritual life will become more rich and more deeper. And if we will have remembered Krishna throughout our life,
naturally, when at the time of death, we will remember Krishna only, and then we will return back to him. Hare Krishna. Hare Bol. So let's first thank by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Ram. Hare Hare Ram. Rama, Hare Hare. So this mantra 17 in nutshell. Summary is that remembering the Lord at the time of death. And it is a beautiful for a person. Beautiful for a person. That's all. Very nicely Prabhuji has covered. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Certain section we have to read here. Something I have mentioned here. What is usually sometimes things proper is very hard. Somewhere Prabhupada says that it is not in your hand what you think at the time of death. It depends on what life you live at. It is not that we can dictate what we want to remember. That is not possible. Mantra 18 says that. It clearly says that it is not that in your hand what you can think. So here somewhere Prabhupada says only self-realization is not sufficient. Correct. In paragraph 4, he says that only self-realization is not sufficient because the person will fall down. As long as you don't understand that you are the servant of Krishna, you will be keep falling down. And paragraph 5 also same thing is mentioned. That the Atma Sakshatkar is not perfect as long as you go to the stage beyond Atma that I am the servant of God. Atma is the eternal servant of the Lord. Then only your Atma Sakshatkara is perfect. Bhaunam Jananamante Jnanvan Mam Prapadyate Vasudeva Saramiti Samatma Suvarna. That verse also Prabhupada quotes in the Prabhupada. And then art of dying. The devotee is praying to the Lord to remember his activity and sacrifices he has performed. One who is completely, correct. One who is completely under the rule of the material nature remembers the heinous activity he performed during the existence of his material body and consequently gets another material body after death. See, not everybody can remember God. No. One who is not a devotee, he is forced to remember all his past bad habits. And therefore he will getting the same body. But unlike the simple animals, we have not developed the mind. Paragraph 9. The time human being can remember the activities of his life like a dreams at night. Therefore, his mind remains surcharged with the material desires, and consequently, he cannot enter the spiritual kingdom with a special heart. The devotees, however, develop a sense of love of Godhead by practicing devotional service to the Lord. Okay, and therefore he can remember the God or Lord at the time of death. But even if he doesn't remember, even if at the time of death the devotee does not remember his service to the Lord does not forget. This prayer is given to remind the Lord of the devotee's sacrifices. But even if there is no such reminder, the Lord does not forget the service rendered by his devotees. Even if you don't remind, it doesn't matter. Therefore, in Sri Sampradaya, Ramanujacharya asked Varadaraja, Kanchipurna, to ask Varadaraja,
some questions. Like he said, if at the time of death you told that you remember me, if I don't remember, then what will happen to me? Varadaraj said, I will remember. Only what you do? Prapatti. Asi Sampradaya, Prapatti is the highest. Sharanagati. Asi Sampradaya, the Paribhasha Sutra of Bhagavad Gita is Sarvadharman Parit. And Gaudiya Sampradaya, the Paribhasha Sutra of Bhagavad Gita is what? Who can tell me? Who knows? Paribhasha Sutra means the most important shloka. Which Rest Sampradaya, of the- Prabhu? You Huh? saying? For which Sampradaya you are asking? Our Sampradaya. Gaudiya. Manmanabhava Madhya. Manmarma. And Srimad Bhagavatam also, Kete Chan Sakala Puja. Krishnastu Bhagavan. So Ramanujacharya was told by Lord that even if he doesn't remember me at the time of death, Lord will remember him. But what he has to do right now, he has to remember. He has to Sharanagati. He has to Prapatti to the Lord. And how that is possible, that Prabhupada is giving so nicely in Paragraph 11. What? Sravanam Kirtanam Novida Bhakti. And so nicely he is explaining up to each devotee who perfected his life. So don't look in the book. Now I'll ask you some question to you. Okay. Don't look into the book, please. Look at me now. Who is the Acharya for Savanam? Sorry, Prabhu, Who can are- you repeat the question? Parikshit Maharaj. Who is the Acharya for the Savanam? This Navavida Bhakti is there, na? Sarvanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Savanam Mandanam Dasam Sakyam Atma Nivedanam Iti Punsa Bhakti Bhakti Navavida Bhakti Chenava Lakshana Kriyata Bhagavati Adda Tan Manye Dita Uttamam. So this last line is important, that all this bhakti has to be surrendered to the Lord. It should be submitted to the Lord. Okay, who is the Acharya for Kirtanam? Kirtanam. Sukhdev Goswami. अक्रूर जी नहीं नहीं सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी Saranam Kirtanam. Vishnu Smaranam. Smaranam, who is the Prahlad. प्रहलाद महाराज श्रवणम that is the Shravanam. No, Shravanam is the Parikshit. Kirtan. Smaranam Kirtan. is Then Archanam, अर्चन अक्रूर जी Akruji is for praying, praying. prayer. Smaranam, Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj. Archanam, Prithu Maharaj. Prithu Maharaj. Vandana, Pada Sivanam, लक्ष्मी माता पाद से लक्ष्मी जी Dasyam, Hanuman, Hanuman. and Saranagati, complete surrender is Bali Maharaj. Bali Maharaj. बली महाराज Arjun. So like that Prabhupada is given. And one more shloka from Bhagavatam. Savaya mana Krishna padar vindayu vacham se vaikunta gunam varnane karo harir mandir mahajana vishwa sutim chakara chat patore. That is Mukunda Lingale, Darshane Dishu. Like that, every sense, how should we engage in the service of. So when you follow this Navavida Bhakti during right now, then whether you remember Krishna or not, that is Krishna has to remember. Not you have to. So then, in paragraph 12, Prabhupada is introducing his audience, corporate audience of Ishapanishad Srimad Bhagavatam. He says that the explanation of all the Vedic mantras is nicely given in Srimad Bhagavatam, Nityam Bhagavata Sevaya. And therefore, Parikshit Maharaj was told by Shukdev, Tasma Bharata Sarvatma Bhagavan Sarvatam Bhati Sotavya Kirtitavyascha Smartavyascha Chetita Bhayam. If you are Ichha, if you are willing to be not afraid of the Bhaya, of the death, what do you do? Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Satvat Ishvaro Hari. You worship him, remember him, chant his name.
Then P14 he says that very, very important, that we have to mold our life to hear about the activities of the Lord constantly. So I have written 3 questions for all of you. First, how to do it? Every individual has to do according to his time, place, circumstance. Like the mother who is pregnant and who has just delivered the baby, how she will be able to do it? And how the sannyasi will do, both will be different. Correct. Or the devotee who is working in the farm, how will do it? Then you have to write down the question, what are the obstacles to do that? And third is your plan to overcome the factor. To do this Ranam Kirtanam throughout the life. Okay. And then last Prabhupada, is concluding. Unless one is accustomed to the devotion practice, what will he remember to come? Wow, beautiful diagram. Huh? When the body is dislocated, how can he pray to the Almighty Lord to sacrifice everything in the interest of the senses? One has to learn this art by employing the senses in the service of the Lord. And Pare Bhakta, this is only possible when you have control your own life. If you don't have control your own life, you will have to nicely chant Hare Krishna. If 10 to 12 hours you are outside, are you honest that you are remembering 24/7 Lord? Huh? We have to develop the complete lifestyle based on the principle. And therefore the villages are created by God, cities are created by man. Very clear. Prabhupada has so many letters. Tadar jastamo bhava kamaloba deshche cheta etarana vidyam sitam sadve prasiddha. When Prabhupada saw many of his people are falling down, sannyasis, grihasthas, all. Then he, at the time of living body, Prabhupada quoted this sloka. Tadar jastamo bhava kamaloba. If you hear Prabhupada last tip, Prabhupada said, therefore, we have to develop mode of goodness. When you develop mode of goodness, there is no chance of going to the animal kingdom. There is no chance of going to the animal kingdom. At the time of death, he is not telling that you remember Krishna by chanting Hare. That he already told. But how to do that, he says, so you have to come to the platform of goodness. And how is that possible? He says 50% of our mission is incomplete. And that difference you can easily see. I'm urging all to at least start thinking over this. That how I can nicely remember Krishna throughout my life. And how I can give chance to my children, not kill the children. Who is killing the children? Parents, not the teacher. And Atma, the killer of the soul. Correct, Radharan Prabhu? I talked to Yes, your Prabhu. child. Yes. I asked him, अरे आपका कल अगर मैंने आपको स्कूल से छुट्टी दिया तो इतना खुश हो गया प्रभु जी, वाह प्रभु। मैंने बोला देख तू बुद्धिमान है कि नहीं, आज उसको मैं गुरु पूजा में बोला हाँ प्रभु जी। मैंने देख अभी तू IIT जाएगा और केमिकल खा के तुझे कैंसर हो जाएगा, तो चैंटिंग कर पाएगा, केमोथेरेपी करना पड़ेगा? नहीं प्रभु जी, अगर मैंने तुझे हमारा जितना टेम्पल वाले उतना एक फार्म दिया और उसको मुझे तुझे ट्रेनिंग दिया कि पूरे साल भर हर दिन फ्रेश सब्जी कैसे उगाना है, कैसे पेड़ लगाने, सुपारी के, केले के, ताकि पैसा भी आएगा, फिर भगवान को फ्रेश ऑफर करना है। बोले प्रभु जी मैं अभी सीखने को रेडी हूँ। बोले Very तू nice. बुद्धिमान है ना? बोले मैं बुद्धिमान बुद्धिमान था वो। मैं कौन ऐसा बुद्धिमानी का एजुकेशन लेगा नहीं भाई, बढ़िया खुद भी अच्छे से खा रहा है, भगवान को भी हम क्या भोग लगा केमिकल, Very true. क्या Yes. भगवान को भोग लगा रहे हम? अरे डिवोशन दिखाना मतलब बुद्धि से दिखाना है। भगवान कुछ भी खा रहा है आपका, लेकिन उनके मेन गुरु ने क्या बोला, ग्रो योर ओन फूड, तो उधर फोकस नहीं करना। नहीं भगवान ये खा लो। अरे भाई तुम खुद नहीं खा रहे और भगवान को खिला रहे मैं तो खाता ही नहीं। वृंदावन में मैंने एक भी वहां का स्वीट खाया, कुछ भी नहीं। मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां का ब्रज खाऊंगा, लेकिन स्वीट नहीं खाऊंगा।
Yes. लोगों ने प्रसाद मांगा ना, बोला ये लो ब्रज लो, क्योंकि मैंने जो नहीं कहा मैं लोगों को दे नहीं सकता, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कितनी बार प्रभुपाद जिससे बोल रहे कि आप अगर अच्छे से लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आपकी आंख खुल जाएगी। हाँ, हमें खुद को क्वेश्चन पूछना है, दूसरे को नहीं। अनलेस वन इज अकस्टम्ड टू द डिवोशनल प्रैक्टिस, हर दिन मंगल आरती कर रहे हैं हम। कितने पेरेंट्स हर दिन मंगल आरती कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। आपको सबको 4:30 आना कंपलसरी नहीं है। फैमिली का मंगल आरती 7 बजे भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। करेक्ट, उसके लिए आपको कस्टमाइज प्रोग्राम करना बेस्ड ऑन योर नीड्स ऑफ द फैमिली, नीड्स ऑफ योर फैमिली। हर दिन बच्चों को भगवान का शालिग्राम का पूजा करने को लगाना, उसका अभिषेक आना चाहिए, गाय का दूध निकालने आना चाहिए। गोबर, अरे भगवान कृष्ण के पूरे शरीर में वो गोबर लगा के बैठ, और हमने गोबर को हाथ लगा तो अरे दो 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 सो, क्या तुम जिस भगवान की पूजा कर, जो खुद को गोबर में ऐसे डाल के रखते, गाय के सब, तुमने गोबर में हाथ डाला तो कैसा लग रहा है? कहाँ से गोलोक जाऊं? आप जा सकते हो दूसरे प्लेनेट में, लेकिन गोलोक में नहीं जाओ, क्योंकि उसका नाम ही गोलोक, सुरभि लोग, गाय वहां पे मेन। और इसलिए भगवान ने गाय के साथ 24 आवर ज्यादा एसोसिएशन हो गाय को ही देते, किसी को देते नहीं, है ना। तो आप तो गाय, अभी हमारे टेम्पल में जो गौशाला है, कितने ब्रह्मचारी जो आपने हर दिन जाते, कितने कांग्रेगेशन जब मंदिर में आते तो गौशाला में एटलीस्ट गाय को टच करते हैं। उसको टच करने से आपको फायदा हो, आपको पूरा इकोनॉमिक नीड आपका पूरा करेगा, पूरा। तो इससे बोलते एक गाय एक छोटा सा लाए, यू डोंट नीड एनीथिंग। ये मेरे वाक्य प्रोपा जी का, मेरे को बुद्धि का है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? बहुत अच्छा पर्पट है, हर चीज को ठीक से बार बार पढ़ना चाहिए, तब समझ में आता है कि क्या प्रोपा जी बोलना चाह, इसमें हमें क्या बोलना चाह रहे। अरे भक्त, खिड़की खोल दो। किसी को कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? बुद्धिमानी की बात है ना। अपने पास अपना टेम्पल हॉल कितने स्क्वायर फीट का है? 5,000। उससे भी उतना भी लैंड नहीं चाहिए आपको, उतना भी। मैं झारखंड में गया था, एक ड्यूटी के घर में उसकी माँ थी, अपना टेम्पल हॉल जो उसका आधा ही लैंड था उसका, उसके घर के पीछे उसने इतना आम का पेड़, सुपारी का पेड़, कोथिंबीर, कड़ी पत्ता तोड़ के हमको सब्जी खिला, ऐसा लग रहा था। इतना पूरा भरा हुआ था गार्डन, उसको इतना नॉलेज था ना कि बरोबर हर दिन वो 4 लोगों के लिए फ्रेश सब्जी लेके आता। टेम्पल हॉल से भी आधा था वो, बहुत हो जाता है उसके लिए बुद्धिमानी से। हर एक लेडीज को नॉलेज था। कितना उसका फाइनेंस बच गया। तो सिटी में हस्बैंड बेचारा कमाता है 1 लाख भी कम पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पत्नी को देनी चाहिए। तो तुम अपने पास पैसा रखते हो तो धर्मपत्नी बोलेगी निकालो पैसा, जब उसको पैसा दिया तो उसको चलाना आता। ये शास्त्र में लिखा है, यू सबमिट ऑल मनी टू वाइफ, कहला ये मेरा पैसा मैं तेरे को दे रहा, जो करना तू करवा, अभी मैं नहीं लेके आ सकता, मैं तेरे को दे रहा, फिर बराबर आधा ही खर्च करे, आधा उसके पास रख दी। अगर तुम बोले तेरे को कितना चाहिए, फिर अनलिमिटेड मांग। ये शास्त्र में लिखा है। इसलिए हाउ टू एंगेज आवर धर्मपत्नी इन असिस्टिंग द हस्बैंड फाइनेंशियल, बोथ हैज टू टेक द रोल ऑफ द फाइनेंस। दोनों को भी समझना चाहिए कि कैसे घर में हमें हमारे बच्चों को, हमारे घर को कैसे आगे लेके जाना है। दोनों का रोल होता है, इसका एजुकेशन दोनों को देना बहुत जरूरी है, तो एक तरफी हो जाए, है ना। ऐसे क्या अमित, को क्या प्रश्न है, क्या कमेंट है? पूछिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हम्म, बाकी भक्तों का आ रहा है? नहीं प्रभु जी। हम्म प्रभु जी अभी आ रहा है? नहीं, हम्म हम्म सॉरी प्रभु जी। जो 9 सर्विसेज बताई है, डिवोशनल सर्विसेज, राइट, और उसके बाद एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो हम हमारे मतलब जो जो डिवोटीज है, तो थोड़ा सा ये बताएंगे कि
What's the difference between serving the lotus feet of Lord, worshipping the Lord, serving the Lord? जो 4 है वो serving the lotus feet है, 7 है serving the Lord है, और worshipping the Lord, इसमें क्या differences है और हम कैसे कर सकते हैं इसको? मुझे सोचना पड़ेगा। सडनली आई कांट आंसर। किसी को पता है इसका आंसर? कहीं सुना आपने किसी लेक्चर में? Difference between serving 4 जो 4th है serving the lotus feet of Lord, 5th worshipping the Lord, 7th serving the Lord. As per my understanding, serving the lotus feet of the Lord, Prabhupada says serving the devotees of the Lord. Okay. Because at the lotus feet, the devotees are only sitting. Then serving the Lord is direct serving the Lord. And is what? Worshipping the Lord, na? What is is that? Archanam. हाँ, मुझे देखना पड़ेगा इसका प्रपट जो दिया है ना, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा होगा। श्रीमद् भागवतम में जो लाद महाराज की इसमें ना, उसमें मैं बताऊंगा। Thank you, Guruji. That question. One more thing that I have heard in serving the lotus feet of the Lord is परिक्रमा भी भगवान के धाम की सेवा में वो पाँच हाँ, बराबर बराबर टेम्पल आना जाना, that is also पाँच सेवा। बराबर। And worshipping तो अर्चना भगवान की, टेम्पल में अर्चना। हाँ? वर्शिपिंग मतलब अर्चना करना भगवान की। वर्शिपिंग में भी दिया है कि रीडिंग भागवतम इज आल्सो वर्शिपिंग द लॉर्ड। पूरा जो भगवान के वर्शिप का डिटेल्स मैनर में दिया है कि जब हम भगवान के सामने श्रीमद् भागवत पढ़ते, वो भी अर्चना का ही पार्ट है। वो भी किसका पार्ट है? अर्चना का पार्ट। जो परपट पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऐसा डिफरेंस क्यों है। सब तो लगता सेम ही है। जैसे आपको जैसे श्रवणम है, श्रवणम में आपने कुछ भी वर्शिप नहीं है, केवल भगवान के बारे में सुन भी रहे हो और बोलना मतलब बस भगवान के बारे में बोल ही रहे हो। तो जैसे वर्शिपिंग मतलब फिर डीटी आता है। इवन आप डीटी वर्शिप नहीं करो लेकिन मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो, वो भी डीटी वर्शिप का पार्ट है। वो भी डीटी वर्शिप का पार्ट। ओके, और कोई कमेंट क्वेश्चन? I think Prabhuji, you follow either of those paths and you can attain moksha. That's the Generally Chaitanya Charitamrita Prabhupada says that first you have to perfect Savanam. Savanam is the entry for all other processes. Without that you can't enter other processes. Chaitanya Charitamrita में सेम पर्पट की प्रभुपाद जी ने दिया है। ओके, किसी ने अगर पढ़ा हुआ तो उसमें और डिटेल में दिया। चैतन्य चरितामृत में एडवांस लेवल पे दिया इसी वर्ष के ऊपर। श्रवणम इज द फर्स्ट for the conditioned soul, because even if you may be worshipping the Lord, but if you don't know the glories of the Lord, you will be just being mechanical. Even chanting also can be mechanical. But when you hear the glories of chanting, hear the glories of the Lord's form, beauty, then you will do it nicely. So therefore, the key for all the process is what? Sarvanam. Even for Kirtanam also, Sarvanam is the key. Correct? Tasyam ve suyamanaya Krishna Paramapurush. Therefore, Bhagavatam you will find Shranvatam Sukata Krishna. More focus is given on where? Sarvanam. More Tasmat Bharata Sarvatma. Bhagwan Ishvara Srotavya. First it will come Srotavya. Everywhere Srotavya. Sarvanam. Satam Prasangan Mavirya Samhito. Bhavanti Ratkarna Rasayana Katha. Correct. Again, Sarvanam. आप में से कितने लोगों को अनुभव है आप आपका डीटी वर्शिप करते हो, लेकिन अगर आप कथा नहीं सुनेगा तो वो मैकेनिकल हो जाए, होता है। जैसे कथा सुनेगा तो डबल जैसे अरे मेरे पास भगवान है, मुझे और क्या चाहिए। इवन कभी कभी धाम में जाएंगे वृंदावन में, आपने प्रॉपर कॉन्शियस में नहीं जाएंगे तो जस्ट जाके आएंगे फचट हो जाएंगे, क्या यार इतना धूप है, प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिला है, रिक्शा वाले परेशान होते। आप ऐसा 10 दिन रिक्शा सुन के जाओ। प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर बोलते वृंदावन में गए ना तुमको रहने का जगह नहीं मिला ना, पेड़ के नीचे रहो, तुमको किसी ने खाने नहीं दिया ना, 4 घर में भीख मांगो,
लेकिन वृंदावन मत छोड़ो। कपड़े नहीं है ना, एक इधर उधर से मांग के रिवर्स से बोले कि वृंदावन मत छोड़ो। ऐसा कौन बोल रहा है? फिर वो धनंजय सर, फिर हमें लगता है अरे बाप रे, ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत फैसिलिटी मिला। इतना अच्छा लॉज मिला। ठीक है। हम्म? और कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं तो आपके अर्धांगिनी आ गई प्रेजेंटेशन के लिए? No, Prabhu, no, Prabhuji, she is still on her way. I think it will take time because exam दूर था घर से. तो ठीक है, मैं Going चालू करता था, फिर हम इसको समाप्त करके फिर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस करेंगे, ओपन बुक क्वेश्चन है ना, उसके Okay. ऊपर मुझे आपको गाइडेंस करना है, हाउ टू राइट इट। ठीक है। सो नेक्स्ट श्लोक, लास्ट, अग्नेय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योच्चस्मः जुरानमेनो भूयिष्ठा हे नम उक्तिम विदेव। ये जो मंत्र है ना, ये वैदिक मंत्र है, इसलिए इसका कोई आपको ऐसा भगवत गीता से अनुष्टुप छंद मत लगाना आप। ये अनुष्टुप छंद भी नहीं है, नैदर तिष्टुप छंद, ये वैदिक मंत्र है, ये अलग बोले जाते हैं। ठीक है। सो कैन एनीबॉडी रीड द ट्रांसलेशन? Anybody can start reading. Hare Krishna. Uh, O my Lord, as powerful as fire, O omnipotent one, now I offer you all obeisances, falling on the ground at your feet. O my Lord, please lead me on the right path to reach you. And since you know all that I have done in the past, please free from the reactions to the past sins, so that there will be no hindrance to my progress. This is mantra 18. Final. तो जो स्पीकर है तो भगवान के चरणों में खुद को डाल दे रहा है और उनका गाइडेंस मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, कि ताकि उसके जो भी मिस्टेक हो चुकी है, कर्म हो चुका है, उससे भगवान उसको क्या करेंगे? शांति देंगे, मदद करेंगे। तो लास्ट के जो जो दो श्लोका है ना, ये क्या है? लास्ट के दो श्लोका क्या है? प्रेयर्स फॉर द प्रैक्टिस। मंत्र 1560 क्या है? The devotees prayer for the knowledge. And the 1718 are the prayer of the practice. What practice I want to at the time of growth. इसके ऊपर वो फोकस। तो इसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया। Lord is compared as an Agni. The quality of Agni is that burns everything. Thack, भस्म, सबको भस्म करने। So only the devotional service only guarantees Naishkarmi. You know this concept of Naishkarmi, right? What is the karma, Naishkarma? There is a one karma, good karma, punya karma. One is a vikarma, papa karma. And Naishkarma means not punya, not papa. Akarma. Going to this picture. Because by punya karma also you will be entangled. But only by Naishkarma or Akarma, you can go back to God. So that is only possible by the devotional service. Otherwise, what Prabhupada says, the karma kanda person will do the fruit activity, but a slight change will become vikarma, and he will continue coming back, going back, coming. But only by the it's possible by the Lord's mercy, because he can burn all inauspicious. He can burn all auspicious. Second paragraph, Prabhupada says that self-realization is possible in a Brahminical level. But it is not by the birth only you can become Brahmin. The training has to be there. So there is a verse in the Upanishads, Janmana Jayate hai Shudra. Maximum लोगों को पता है. Correct. Janmana Jayate Shudra. Every person is a Shudra. Shudra is not some black person. Shudra means who cries. Like Arjuna is called Shudra because he was crying. Correct. Shudra means one who has no spiritual knowledge. That is Shudra. One may be very, very beautiful person, very rich person, still he may be Shudra.
because if he doesn't have spiritual knowledge. Correct. It's not like certain caste. No. Very clear. Samskara Dve Dvija. When you are given the 16 samskara, you will become Dvija, twice born. Otherwise, you are not twice born. Every person can become twice born. The twice born means by the spiritual instruction from the Guru, you become twice born. Ved Pathat Bhavit. Veda Pata Dve Dvija. When he is initiated, he is called as Vedaramba. He will be eligible to study Veda. And after the studying Veda, he understands that I am Brahman. I am the Atma. Brahma Janati iti Brahmana. He becomes the Brahman. And after that, when he understands that I am the Brahman, I am the soul, Lord Krishna is the supreme, and I am in part and parcel of him, and I must serve him the devotional service, he becomes Vaishnava. Correct? And one who has become Vaishnava, he knows everything what is already given. So that's why training has to be done. Therefore, it is the responsibility of every parent to train its child to become Dvija. Okay. That is Deva Varnashram. First of all, you have to know the 16 samskara. What should be given to the pregnant woman, to the child, for their spiritual hair, material hair, mental hair. The knowledge is lost. We have to revive this knowledge. Okay. Now, third paragraph. Prabhupada is telling that Bhagavad Gita shloka, he, one who is on this path of bhakti yoga, even if sometimes he appears to be false, he will come back to the, he will get opportunity to continue his work. Athva yogina dhimati. He will get a birth in a Brahmin family or a devotee family or a rich family where he can easily do the paragraph 4, Prabhupada says, only to the devotees Lord will give the help, not other people. Lord gives the help to the devotee, whatever is needed, but other marga, Lord doesn't give much help. They have to struggle. They can fall down any time. They can fall down any time. But the only servant, because he is called as Agni, he is qualified. Aprarabdham phalam punyam, uttam vision phalon mukham. All these previous karma, the mentality to do the sin, the bijam kutam means the mentality to the sin. That doesn't go out. How many of you accept that the mentality to do the sin is a deep root? बार बार आती रहती, बार बार ऐसे करना चाहिए, ऐसा करके देख. It is called as a kutam. The bhakti, what happened? All these are एक झटके में, 100 सोनार के एक लोहार. बाकी कर्म कांड से एक कुटुंब जाता. जैसे हम देखते कि डेमिगॉड से भी, देवताओं से भी बार बार पाप होता है. कभी ऋषि मुनि की पत्नी को भगाएंगे, ये करेंगे, वो कुटुंब अंदर से जाता. वो भक्ति से क्या होता है? भगवान निकालते. कौन सा श्लोक? सन्वदाम सकल कृष्ण पुण्य देवान कीर्तन अधिअंतस्थ बदराणी विधुनोती श्रुतसता. मराठीमध्ये धुना धुणे, संस्कृत में विधुन होती, विकृष्ट रूपे न धोला ले. कुछ भी रखते नहीं, पूरा का पूरा कट एक भी दाग निकालते. कितना कंपनी ऐड करता, सर्फ एक्सेल ये वो, लेकिन वो भगवान से लिया हमने. विधुन होती, भगवान थोड़ा भी ऐसा डिटर्जेंट एक भी गंदगी रखेंगे, पूरा साफ करे. भगवान प्रॉमिस कर. इसलिए मैंने लिखा है, क्लियर है ना. He can make such a omnipotence of the Lord that he can make a man born in a Brahmana family as a degraded as a low-born dog eater, and he can also make a low-born dog eater superior to the qualified Brahmana simply on the strength of the devotional service. Master did this. Very powerful. Paragraph 5, Prabhupada says that this is good news for all of you. That sometimes we know everything, but still we want to commit sin. मैं खुद भी ऐसा ही. तो प्रभुपाद ने गुड न्यूज क्या दिया आपको, देखिए. Since the omnipotent Lord is situated within the heart of everyone, paragraph 5.
He can give direction to his sincere devotee by which they can attain the highest path. Such a directions are especially offered to the devotee, even if he desires something else. Even if he doesn't desire it. वो चाहता थोड़ा पाप कर लूं मैं, लेकिन फिर भी भगवान उसको छोड़ दे नहीं है. As per others are concerned, God gives sanction to the doer only at the risk of the doer. But in the case of devotee, the Lord directs him in a such way that he never acts wrong. Swapadamulam bhajata priyasya tyaktaanyabhavasya hariparesha vikarmaya chotapatim katanchit dhunoti sarvam hadisannimishta. Wow! 11th canto. The Lord is so kind to the devotee who is fully surrendered to his lotus feet that even though the devotee sometimes falls into the entanglement of the vikarma, acts against the Vedic direction, the Lord at once rectifies such mistakes from within his heart. This is because the devotees are very dear to the Lord. Hari Wow. News. The condition आत्मा के लिए बहुत important. Paragraph 6 में प्रभु क्या बोलते हैं? Error is a human being. But God, Krishna helps such a sincere devotee, even if they mistake. He corrects them. How he corrects? Either through sadhu, through shastra, or he will correct. He will personally guide him. जैसे सिंपल मैं बताता हूँ कि जब 2003 में मैं कुंजबाई टेम्पल में आया था, तो एक ऐसा हॉट कूल वाटर बॉटल का बहुत फैशन आया था. पता है आपको ना हॉट? उस समय इतना नहीं था वो बॉटल. एक गोविंद प्रभु के पास ही था. तो हमारे आश्रम में एक के पास आ गया. तो मुझे भी मिलना चाहिए बॉटल. इतना डिजायर आ रहा है. चैंटिंग में बॉटल आ रहा था. फिर मैंने उसको मंगा लिया. फिर बॉटल आया. 4 दिन के बाद वो बॉटल मेरा कहते तो भूल गया. 8 दिन के बाद एक ड्यूटी बुला रही, तू बॉटल बॉटल कर रहा, तेरा बॉटल गिरा है, ये ले तेरा बॉटल. मतलब भगवान ने मेरा इच्छा को उड़ा दिया. बॉटल से ले ले. लेकिन सोचा यार क्या फायदा. बॉटल आया लेकिन बाद में भगवान इतना तृप्त कर दे कि वो बॉटल कहाँ गिरा वो भी मुझे पता नहीं. तो हमें भगवान ऐसा कैसा करता है? आपकी इच्छा में कभी माइंड में सेंस एप्लीकेशन करने की इच्छा रहेगी, ये मिलेगा तो मैं भक्ति अच्छे से करूंगा, और बाद में भगवान आपको देंगे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन आपको फर्स्ट करेंगे, बोलेंगे देख कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं है, खाली माइंड में इमेजिनेशन है. जो उसका सुख केवल माइंड में, एक बार मिल गया ना उसके बाद कुछ है नहीं है. मूर्ख मेरा समय बर्बाद किया मैंने चैंटिंग. कितने लोगों को अनुभव सच बोल ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान की आपकी कृपा है. क्या है आपके ऊपर? ले भाई, तो हैंकरिंग मत, है ना. जैसे जब ब्रह्मचारी को क्या लगता है, अरे शादी करे मत कितना अच्छा लगे, वैसे इमेजिन करना. आपको जिसने शादी किया बुरा नहीं है, इट इज अ सर्विस. When you take in that perspective, then you can live forever. If you think only enjoyment, even Mataji also thinking enjoyment, then not for much time. They will be frustrated. But if you are marrying for dharma, dharma aviruddha bhutosh, kamos mein bharatash, then you can live forever. Otherwise, if you are imagining something, मेरा एक स्टूडेंट जैसे उसका मैरिज फिक्स हो गया, वो फॉरेस्ट ऑफ बटल एंजॉयमेंट पढ़ रहा है. मैंने उसको डांटा, बोला मूर्ख ऐसा कुछ गड़बड़ मत कर, काम कर, मैरिज टिकना चाहिए, गलत काम मत. क्या पढ़ रहा है वो? सॉरी. फॉरेस्ट ऑफ मॉडल एंजॉयमेंट अच्छा. पढ़ रहा था वो. मैंने उसको बहुत डांटा, बोला ऐसा नहीं है, मैरिज मतलब माया नहीं है. तू रह सकता है क्या? माया तेरे माइंड में, समझ गया? एंजॉइंग मेंटेलिटी माया है, स्त्री माया नहीं, पुरुष माया नहीं. एंजॉइंग मेंटेलिटी. यस, फॉर धर्मा विरुद्ध भूत. I am doing this part because Krishna is in Bhagavad. Therefore, I am doing. Honestly, like Kardam Muni honestly told Lord that I can't remain sannyas. I need marriage. Okay, Lord was very happy. He came as his son. He is an honest person. He is not showing that I can want to do something I can't. I can't do this, but I can do bhakti. Okay, do bhakti. You get 9 daughters also, and Lord personally came. He never asked her. Lord personally said that I will come as your son. He never asked us because of his sincere, because of his sincere desire to serve.
Therefore, sincere desire is the main important. What ashram you are, that is not important. What is that important? Sincere. And one may take some time also to fully dedicate. You have to do your duty. आधा अधूरा काम नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं. फैमिली ड्यूटी भी एक महाविष्णु गोस्वामी महाराज थे, गुजरात के थे. तो क्या बोलते थे, फर्स्ट डू योर ड्यूटी सो नाइसली दैट आफ्टर सम टाइम यू कैन फुल्ली डेडिकेट, नो मोर लुकिंग बैक. ऐसा नहीं कि आधा इधर, जैसे वो तिरुपति में क्या करते हैं, लोग बाल काटने जाते हैं ना, तो एक का थोड़ा बाल काटेगा, दूसरे का काटेगा, ताकि वो कस्टमर जाएंगे. वैसा सिस्टम मत, आधा अधूरा आधा. एक जो अभी आपके बच्चे हैं, फुल्ली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कैसे ड्यूटी बनाना है, उनको अपने पैर पे कैसा खड़ा करना है. जो घर में माता पिता है, उनको कैसे बनाना है. जो स्त्री होती है, उसको अपने माता पिता भी होते हैं, उसको भी बनाना आता है. पति के माता पिता को बनाना आता है. इसलिए स्त्री का रोल ज्यादा होता है. वो अपनी फैमिली को भी कनेक्ट करती है और पति की फैमिली को भी करती है. इसलिए उनको एजुकेशन करना बहुत जरूरी है. नहीं तो आपका फैमिली फेल हो जाए, कुछ कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं. आपके माता पिता का सेवा करना तो भी पत्नी चाहिए, यज्ञ करना तो भी पत्नी चाहिए, साधु को घर बुलाना तो भी पत्नी चाहिए. नहीं तो बोलेंगे निकल जाए यहाँ से. क्या करेंगे तुम? है ना. फाइनेंस को ठीक से करना तो भी पत्नी चाहिए. इसलिए वो बहुत जरूरी है. और ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया उसको, ठीक से खाने का, आपका भक्ति फेल. ठीक है, आगे जाते. क्वेश्चन है इसमें कुछ? आगे जाओ, आगे जाओ. कहाँ पे आए थे आप? प्यारा सेवन. Must read. If one takes shelter of a bona fide spiritual master, it is to be understood that he has obtained the grace of Lord. So, if somebody is getting a good guidance, it means he's got the mercy of Lord. Without that, he will not get a good guidance. Personalized guidance on how to do my bhakti. That is a blessing of Lord. We have to cry. Yes, getting Guru is there, but the guidance, Guru means Shiksha. The most important role of Guru is what? Shiksha. Guru is not just a fashion. मैंने इतने बड़े गुरु से दीक्षा है, मैं रियल गुरु की बात. बट आर यू टेकिंग रेगुलर शिक्षा? ऐसा नहीं कि गुरु को दिखाना नहीं, अंदर पूरा 420 का काम कर रहे हैं, और गुरु आएंगे तो उनको गालन देंगे, उनको गाड़ी में घुपाएंगे, और साल भर 420 का काम. ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, समझ रहे. तो रियल कृपा ऑफ द गुरु और द गॉड इज वन. You are getting the personalized guidance on how to go ahead in my bhakti. Every day, how should I do my bhakti? How should I slowly come one step near to the God? This is a very important line. लोग बोलते हैं हाँ हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का कृपा हो गया उसको गुरु की प्राप्ति, गाइडेंस मिलता है कि जिस लेवल में हूं मैं, वहां से धीरे धीरे मुझे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे कैसे सर्वधर्मान पे. Very nice paragraph. Therefore, I have written golden purpose. What is it? Golden. What यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं? 7th में, 8th में. षण्मताम सकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अदयंतस्तो यवद्राणि. अभी प्रभुपाद जी ने 1.2 17 to 20 ये पूरे श्लोक अभी इसमें ट्रांसलेशन देके रखा है. ये पूरा जो है लास्ट का पैराग्राफ बस वही है और कुछ भी नहीं. षण्मताम सकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अदयंतस्तो यवद्राणि नष्ट प्रायश बदरेश नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की तदा रजस्तमो भावा काम अनुबाधय से चेत इतर अनाविदम सितम सत्वे प्रसिद्धति. एंड देन व्हाट? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगदा भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जाय. This all 4 verses are very important. The Prabhupada is quoting exactly Srimad Bhagavatam in the Ishopanishad, which is the essence of the Ishopanishad. To practically engage in the Sravanam Kirtan. Practical, not therapy. So nicely, Prabhupada has given. So anybody has any question, comment till now? Yes. Who is it? Yesterday I met one devotee.
So he has studied in Gurukul for 12 years. But right now he is in Pune. Right now he is in Pune, and his parents are also devotee, initiated उनके parents. Now he is in Pune, but he is not even chanting one round. So now if it seems कि उसको सुकृति थी पिछले जन्म में उसे अच्छे घर में जन्म मिला, devotee and they are rich, but still he is not doing devotional service that seriously. So what is the guarantee कि हमें सुचिनाम श्रीमताम गेय होगा भी, मतलब अच्छे घर में जन्म मिलेगा भी, but what is the guarantee that it may we may do? इसको बहुत एंगल से देखना पड़ता है। जस्ट किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी सिचुएशन को तुरंत रिप्लाई नहीं करना, तुरंत रिएक्ट नहीं करना, है ना। मुझे कौन सा गुरुकुल बताओ इस्कॉन में जो सक्सेसफुल है। मुझे जस्ट मत बताना कि ये गुरुकुल से, मुझे एक गुरुकुल बताओ जो सक्सेसफुल। जस्ट मत बोलना कि कौन से गुरुकुल से पास आउट है, मुझे बता, मैं बताता हूँ गुरुकुल के बारे में क्या है। वो जो अवाड़ा के गुरुकुल आया था। नहीं, वृंदावन के गुरुकुल। हाँ, वृंदावन गुरुकुल को मैं खुद स्टडी किया। गुरुकुल नहीं है, वो स्कूल है, समझ गया। डोंट कॉल इट गुरुकुल। गुरुकुल मतलब एक गुरु के अंडर केवल 15 स्टूडेंट होते हैं, उसके ऊपर नहीं होता है। उसका कैपेसिटी कितने का होता है? ट्रेडिशनल गुरुकुल कभी देखा आप लोगों ने किसमें से? मैंने मेरे खुद के भाई के गुरुकुल कजिन का जो 500 साल से आ रहा है, वो आज एडमिशन लिया, सुनो, आज एडमिशन लिया, 12 बच्चे 15 बच्चे लेता है, 8 साल तक दूसरा एक भी बच्चा लेता नहीं। 8 साल तक उनका पूरा कार्यक्रम होने के बाद दूसरा बैच लेता है। इसके ऐसे 4-5 बैच होते हैं, सबके साथ कनेक्टेड नहीं, सबको बुलाता है हर एकादशी को, हर महीने को। आप किस बात की बात? गुरुकुल क्या फैक्ट्री है क्या? स्कूल थोड़ी हो। तुम गुरुकुल को स्कूल जैसा रन करोगे तो गुरुकुल होंगे नहीं। तो डोंट ब्लेम द गुरुकुल, डोंट ब्लेम द गुरुकुल। जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन में गुरुकुल खोला था तो एक भी उनके शिष्य को गुरुकुल का इंचार्ज नहीं बनाया उन्होंने एक शर्मा जी को बुलाया और उस समय में उसको 200 रुपए पर मंथ पैसा दिया। सोचो आप, 1965 में 200 रुपए पर मंथ, मतलब आज कितना हो गया उसका सैलरी? 2 लाख से भी ज्यादा होगा। और हमारे गुरुकुल के टीचर को कितना सैलरी देते हैं हम? 10-15 हजार। कहाँ से आपको पावरफुल गुरु मिलेगा? हाँ, पता आपको? जस्ट बता के फायदा क्या है ना। मेरे सामने गुरुकुल के प्रोडक्ट है बाहर के, जबरदस्त लोग है वहां पे, पूरे कल्चर है। अब किसी भी चीज को गुरुकुल बोलेंगे, किसी को भी डालेंगे, जिसको नॉलेज है उसको निकाल दोगे, तो कहाँ का गुरुकुल है? जैसे प्रभुपाद जी बाहर गए तो उनके शिष्यों ने उस ब्राह्मण को निकाल दिया, अब फिर वो गुरुकुल पूरा फेल हो गया। चाइल्ड अब्यूज, हिप्पीज, क्या हो गया? क्या हो? उसको गुरुकुल का नॉलेज क्या है? जो गुरुकुल से पास आउट है उसी को रोकूंगा मैं खुद भी नहीं बनूंगा इनसे। मैं गुरुकुल में किसको रोकूंगा? ऐसे पति पत्नी को रोकूंगा जो गुरुकुल से पास आउट है। क्योंकि बच्चों को क्या मेडिसिन देना है, उसको कब मारना है, क्या क्या ट्रायल एरर से करने का है क्या? कोई तुम बड़े प्रीचर हो क्या, मतलब तुम गुरुकुल के लिए क्वालिफाइड हो क्या? हाँ, अभी जैसे आप कोई 64 राउंड कर रहा है, तुम उसके गाड़ी में बैठोगे, उसको ड्राइविंग नहीं आता है, बैठोगे कि उसकी गाड़ी में? तुम नहीं 64 राउंड कर रहा है, नहीं ये सन्यासी है, उसको गाड़ी चलाना आता नहीं है ना, तो उसके गाड़ी में बैठेंगे तुम? तो गुरुकुल चलाना उसके लिए स्किल चाहिए, समझ गए? तो किसी भी एग्जाम्पल दे के आप बोलोगे कि ये गुरुकुल का पास आउट है, पहले जाके स्टडी किया क्या गुरुकुल क्या होता है? बरोबर है कि नहीं? किसने स्टडी किया गुरुकुल क्या होता है? मुझे इस्कॉन में बताओ एक गुरुकुल सक्सेसफुल कौन सा है? कोई भी नहीं। आपको लिख के दे रहा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं किसी को। मेरा चल रहा था तो बंद कर दिया। उसमें मैंने गृहस्थों को इंचार्ज बनाया था, मैं खुद था ही नहीं। वानप्रस्थों को जो खुद गुरुकुल से पास आउट थे, 52 ईयर के डिवोटी थे, वानप्रस्थ थे, जगदीश श्रीमाली बोल के, उनको योग का नॉलेज था, आयुर्वेद का नॉलेज था, पूरा अष्टाध्यायी याद था, था। और फिर उनको मैंने प्रिंसिपल बनाया था और हम उनको असिस्ट कर रहे थे। हम किसी को मारेंगे नहीं, कुछ नहीं। वो बरबर बच्चों को थप्पड़ मारे तो बच्चों को कुछ लगता नहीं, क्योंकि दादा ने मारा तो कुछ लगता नहीं बच्चों को कुछ। तो उसके प्राइवेट पार्ट में भी प्रॉब्लम रहा तो ही कैन सॉल्व इट बिकॉज ही हैज डन फॉर हिज चिल्ड्रन, है ना। उनको प्रॉब्लम नहीं होता, दादा है। तो गुरुकुल चलना तो पहले आपको टीम बनाना पड़ेगा वानप्रस्थों का जो ट्रेंड है। किसी भी पुलिस व्यक्ति को गुरुकुल में एंटर देनी नहीं होती, किसी को भी नहीं। ओनली जो 15 वानप्रस्थ रहेंगे 4-5, और उनके पास उनके 15 बच्चे रहेंगे क्लोज इनवा में, कोई उनका स्टोरी बदलेगा नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा।
8 साल तक हाथ मत लगाओ, फिर देखो क्या प्रोडक्ट ला के देता हूँ। और उधर कोई भी अनवांटेड व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई भी जिसके पास ज्यादा पैसा पावर है उसको डोमिनेट कर नहीं सकता। ओनली जो गुरुकुल में सेवा करेगा वही उसका हाथ, और कोई भी नहीं। समझ गए? तब सक्सेसफुल गुरुकुल हो सकता है। ऐसे नहीं होता जो प्रभुपाद की इच्छा है। अभी तो हम स्कूल का ही सिलेबस डाल देते हैं और बोलते हैं गुरुकुल है। कहाँ का गुरुकुल? किसी को कुछ कमेंट करना है करो, क्वेश्चन पूछना है पूछो। और वानप्रस्थ लोग चाहिए वहां, और गुरु माता चाहिए, लेकिन ऐसी माता चाहिए जिसको बच्चों से प्रेम है। ऐसी माता नहीं है चले। कुछ माताएं पुरुष भाव लेके आते हैं, उनको नहीं रखना गुरु। समझ गए? उनके प्रैक्टिकल बच्चे चाहिए, कम से कम 2-3, उन्हीं को रखना है। उन्होंने बच्चों का शादी कराना चाहिए, इसलिए वानप्रस्थ बेस्ट। कौन होता है वानप्रस्थ? चाइल्ड अब्यूज भी नहीं करता है, और बच्चों का और दादा का बेस्ट जमता है। और उसको रन करने के लिए कुछ यंग लोग रखने हैं जो मैनेजमेंट, मतलब इस वानप्रस्थों का काम क्या है? बस बच्चों के साथ रहना अच्छे से, और उनको मदद करने के लिए बाहर के लोग, जैसे कुकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सब्जी पास, उनको मत लगाओ। उनको बस वहाँ बच्चों के साथ रहना, सेफ रहना, और वो भी ट्रेंड वाला पड़ता है। कोई भी ऐसे टीवी देख के आया वो नहीं, जो पहले गृहस्थ था। तो ये फिर वो गुरुकुल सकता। एटलीस्ट कोई अटेम्प्ट, मैं क्या देखता हूँ, मैं किसी भी गुरुकुल को ब्लेम नहीं कर रहा, एटलीस्ट उसने कुछ तो किया है ना, ठीक है। पर हमें उसको कैसे सुधारना है उसके ऊपर चर्चा करनी। फॉल्ट देखना है, प्रोफेसर यू डू इट, डोंट फाइंड फॉल्ट। कोई कम्युनिटी चल रहा है उसमें भी फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप करके दिखाओ ना, क्यों उसको फाइट करो? हर चीज में फॉल्ट तो है ही है, पूरा भौतिक जगत फॉल्ट से भरा है। सो हाउ आई कैन, ठीक है, अभी कोई गुरुकुल में है, मैं बताऊंगा उस व्यक्ति को, देखिए इस गुरुकुल में ये प्रॉब्लम है, तो खुद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहेगा, फिर गुरुकुल में डाल। डोंट ब्लेम द गुरुकुल, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे गुरुकुल मुझे पता है, उस गुरुकुल में खाने के ठीक से देते नहीं, मैंने माँ बाप को क्या बोला, नॉर्मल स्कूल में डालेगा तो फायदा नहीं। तो तू क्या कर, बच्चे को हर 15 दिन में मिलने को जा, उसको बढ़िया लड्डू खिला दे, लड्डू पैक करके देने के, उसको बढ़िया घी देने का, उसको बताने का कैसे कैसे लेना है, बाद में उसको कुछ ड्राई फ्रूट देने का, वो अपना अपना खाए। गुरुकुल पे उसको दूसरा एजुकेशन तो मिल रहा है, तो देना। अदरवाइज स्कूल में तो कुछ भी नहीं है ना, तो देन यू हैव टू डू इट ऐसा। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला क्या? नहीं मिला? 100% मिला क्या? 1%? यस प्रभु जी मिला। हाँ, ऐसे बहुत मेरे सामने लेके आओ किसी को भी। है ना? मैंने ऑलमोस्ट 200 गुरुकुल स्टडी की ऑल ओवर इंडिया, इसको छोड़ के सब। इस समय मैं खुलूंगा गुरुकुल धीरे धीरे, टाइम लगता, फिर बाद में एक बार ओपन हो गया तो उसको क्लोज नहीं करना। ठीक है, और कोई प्रश्न, कमेंट? उससे अच्छा मैं लोगों को होम स्कूलिंग का ऑप्शन देता हूँ। क्या? क्योंकि गुरुकुल के शिक्षक का सैलरी 15-20 हजार से होता नहीं है। हाँ, 50-1 लाख तो कम से कम, तब आपको एक्सपर्ट लोग, 15 हजार में आपको कहाँ से टीचर मिलेगा? नहीं तो फिर वानप्रस्थ, आपको पैसा नहीं ना, फिर एक्सपर्ट वानप्रस्थ लाओ, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड इंग्लिश टीचर, रिटायर्ड मैथ टीचर, रिटायर्ड संगीत टीचर, फिर आपको फ्री में लोग मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे टॉप। इसके लिए बुद्धि का मैनेजमेंट करना। इन लोगों के लिए क्या, अभी जैसे वानप्रस्थों को रखना है तो उनको हाई क्लास घर बना के दो, जिसमें ठंडी में गर्म होता है, गर्मी में ठंडा होता है, ऑर्गेनिक कुकिंग करो, आपको छोड़ के जाएंगे ऐसा। तो समवेयर यू हैव टू डू समथिंग टू अट्रैक्ट दिस, देन दैट गुरुकुल विल बी नंबर 1। अरे 15 हजार में लोग लाएंगे यंग, तो यंग लोगों को 15 हजार में कैसे तो काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई जॉब नहीं, जैसे आप 5 महीने का छोड़ के जाएंगे, और एक बार आया तो 8 साल तक उसको छोड़ना नहीं। क्योंकि बच्चों को अगर टीचर बदल गया तो उनको नॉलेज नहीं आता, टीचर बदलना नहीं, कम से कम 8 साल पास आउट नहीं होगा तब तक बदलना नहीं। ऐसे कमिटेड लोगों को भी लेना। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? आप में से कितने लोग गुरुकुल खोलने के लिए मदद करने रहे हो, आगे आओ, है ना? फाल्ट मत ढूंढो, आप क्या करना चाहते हो वो बोलो, है ना? वॉट एवर सर्विस, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा फुल टाइम तुम रहो, वॉट एवर यू हैव, फाइनेंशियल हेल्प, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प, subject material help, online help, anything is welcome. Anybody is required,
or Gurukul. Whole nation is required. Earlier Gurukul was run by whole country, not only by Guru. एक गुरु के पास 100 एकड़ लैंड रहता था, राजा उसको सब देगा, उसका काम तो बच्चे को सिखाना। अभी गुरु को ये सब करना पड़ेगा तो सिखाएंगे तो बच्चों, हाँ, उसको बच्चों को फोकस करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको क्या सिखाना है, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अलग सिखाता है। ऐसा नहीं कि सबको घिसा पेट आ जाओ फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में। तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए ना, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम चाहिए। अगर मैनेजमेंट करेगा, अरे खाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं चलेगा, उसके लिए सेपरेट टीम चाहिए। पहले जैसे चाणक्य पंडित के लिए वो सब राजा कर रहा है, उसको केवल बच्चों को ऑब्जर्व करना है, सिक्योरिटी राजा दे रहा है, सब कुछ, तब गुरुकुल चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस मैटर? किसी ने हाथ खड़ा किया था? हाथ खड़ा किया नहीं? एक बार एक भागवतम क्लास में भी एक आई थिंक माता जी ने, यंग माता जी ने गुरुकुल का प्रश्न पूछा था, एक महाराज को भी पूछा था, सन्यासी। तब मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा डीटी सेवा चला था, तो माता जी को अच्छा आंसर देता था कि गुरुकुल क्या होता है पता करो, बाद में क्वेश्चन पूछो। और ये माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मेरा नहीं है। प्रभुपाद की बुक तुम नहीं पढ़ रहे हो, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, डोंट सेंड टू द स्कूल, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कुछ भी नहीं है। आपके लिए प्रभुपाद नहीं है, सबके लिए है, इंस्ट्रक्शन सबके लिए, तो सबको यूनाइट होना पड़ेगा। ऑल फाइंड करके क्या फायदा, आपको भी आपका ड्यूटी पड़ेगा ना। गुरु न सस्यात, न जननी न सस्यात, न पिता न सस्यात। डोंट बिकम द पेरेंट्स इफ यू डोंट हैव प्लान फॉर योर चाइल्ड। व्हाई आर यू बिकमिंग? डालो कोई भी स्कूल में, डोंट बिकम द पेरेंट। प्रभुपाद सेड we should send notice to all grihastha, don't become parent if you don't have plan educating a child. ऐसा प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। He said we should send a notice to all the grihastha, don't produce children if you don't have a plan to educate your child. By accident don't do it. ऐसे ना अभी बच्चा अभी बीएससी कर दिया, अभी क्या करो। एक लड़की को मैंने बात किया जिसने अभी एग्जाम दिया 12th का सीईटी, मैंने बोला तू आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है? बोले नहीं। फिर क्या कर रहा हूँ? इंजीनियरिंग कॉलेज। बोला इंजीनियरिंग कॉलेज? इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बेकार हो जाता है, केवल थोड़ा बहुत जॉब मिलता है किसको, आईटी वाले। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज को तो कुछ भी जॉब नहीं। और वो भी जॉब किसको मिल रहा है, जनरली जो आईटी सेक्टर में है। और आईटी सेक्टर में तो जो जाना था तुझे सीटी देने की जरूरत नहीं थी, तो 9th स्टैंडर्ड में ही प्रोग्रामिंग करके मास्टर बन सकता था। क्यों फालतू में समय बर्बाद? वो सोचने लगा यार, इतना मेहनत किया। बोले प्रभु जी मैंने 3 महीने से ग्राउंड देखा नहीं, चलना नहीं देखा, बुक 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 लेके पागल हो गया मैं। तो बोला तू अगर एक प्रोग्राम बना था 9th स्टैंडर्ड में तो तू आईटी में डॉन बन जाता। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके तो फायदा ही नहीं। मैंने खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, उससे अच्छा मैं अभी बच्चों को अगर सी लैंग्वेज सिखा दिया, जावा सिखा दिया, ओरेकल सिखा दिया तो पैसा कमाना चालू कर दें। क्लाउड टेक्नोलॉजी अभी सिखा दिया तो खत्म, ये अभी सिखा तो खत्म, कहीं का इंजीनियरिंग करेंगे क्या फायदा है ना? क्या फायदा? क्या अभी तो सब प्रोग्रामर का जॉब ही जाने वाला है के कारण, तो खुद ही प्रोग्राम करेंगे यार, तो क्या प्रोग्रामर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लैंड काम में आएंगे, क्या लैंड वो कोई ले नहीं सकता। ये सबका बैंड बजाने वाली, पूरा आईटी इंडस्ट्री का बैंड बजा रहा है। लेकिन लैंड में तो क्या अपना अपना होगा, नारियल के पेड़ लगाओ, सुपारी के लगाओ, फ्रूट के लगाओ, सब्जी लगाओ, बढ़िया भोग लगाओ, खाओ, हर नारियल का हर पार्ट बेच सकते है ना। पैसे पे डिपेंड ही रहना, पैसे को निकाल ही देना है ना। एज लॉन्ग एज बिकम रिच बाय नेचुरल रिसोर्सेज, मनी हैज नो मच वैल्यू। ठीक है, ओपन बुक है आपके पास? किसी के पास ओपन बुक क्वेश्चंस है क्या? आपने देखा है, किसी ने खोला है क्या? क्या प्रभु मेरे जी, खुद के क्या निकाल। क्या बोल रहे प्रभु जी, सॉरी। ओपन बुक क्वेश्चंस, ओपन बुक क्वेश्चंस। ये आपको उसके लिए कोई जरूरत नहीं, यू वांट टू डू योर ओन, यू आर हैप्पी, यू आर ओके टू डू। ओके, अगर उसको आपको लगा डिस्कस करना नहीं, नो नीड। मेरे खुद के ओपन बुक निकाल रहा हूँ, भक्ति शास्त्री सब मेरे पास अभी। जो भी अरबी का शेयर किया था उसके 2 क्वेश्चन, शुड आई रीड?
आप शेयर करो स्क्रीन। क्वेश्चन स्क्रीन क्या मैंने फोन में ओपन किया, मैं करता हूँ फिर शेयर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। शेयर कर रहे हो आप? किया क्या शेयर? बुक शेयर करने के प्रोजेक्ट। हाँ कर सकते हैं, जिसको भी है शेयर करो। माता जी को करना है करने दो। हाँ, क्या ईश्वर निषद क्या प्रश्न है? Describe in your own words practical ways and benefits wherein of the applying the Isha Asya principle in a society in general, ISKCON and your own life. Wow, this is called as an application question for your information. क्या क्या क्वेश्चन के टाइप होते हैं? एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होते हैं, थियोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, शास्त्रिक क्वेश्चन होते हैं। तो आपको गाइडलाइन पढ़ना चाहिए। कभी भी एज इट इज लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स 0 कर देंगे। एज इट इज कभी भी लिखना नहीं है, एज इट इज बुक छापना। लोग एज इट इज बुक छापते हैं, वो उसका अर्थ ही नहीं। ओपन बुक मतलब आपने क्या सोचा। मैं आपको जरा शेयर करता हूँ मेरा खुद का, हाउ टू राइट डाउन। शेयर हाउ टू राइट। अच्छा, कितने लोगों ने आईडीसी कोर्स किया? आईडीसी किया ना? आईडीसी मैंने भागवतम की कैसे लिखोगे? Yes, Prabhuji. कभी स्टॉप करो शेयर करना। एक मिनट, मेरा खुद का मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके। जस्ट I am joining this Zoom from my computer. मोबाइल पे शेयर नहीं। एक्चुअली जब आप कोई भी आंसर लिखते हो तो 3 चीजें है। सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, सेकंड इज द बॉडी एंड फाइनल इज कंक्लूजन। कोई भी चीज प्रेजेंटेशन कर रहे हो, इंट्रोडक्शन इट शुड बी वेरी आइस, मतलब माइंड को एजिटेट करना चाहिए इंट्रोडक्शन देना। ओके,
और दूसरा है बॉडी मेन कंटेंट एंड फाइनल कंक्लूजन। अभी मैं ज्वाइन किया हूँ। Sir, my wife, Prabhuji, my wife just joined her. दिख रहा है? तो आपके ऊपर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, कितने वर्ड्स डाल रहे हो, सब फिक्स होता है। ये फॉर्मेट है। वे जैसे ये SP KC SM VT GSB ये बार बार आने वाला है, इसलिए मैंने उसको पहले से डिक्लेयर कर दिया, तो वो मेरा वर्ड खाएगा क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स रहते हैं, समझ रहे हो? फिर मैं सीधा लग के शॉर्टकट मार के आराम से आगे जा सकता हूँ। ये दिखा रहा हूँ। हाँ, अभी एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ गुरु। जैसा ये क्वेश्चन है, सिमिलरिटीज एंड कैटेगरीज ऑफ गुरु। अब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, इससे कोई बड़ी बात नहीं। पहले सिमिलरिटीज बिटवीन DG एंड SG। देखिए मेरा स्पेस बच गया ना, तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु 4 शब्द, तो अभी 2 शब्द में आ गया हो, समझ रहे ना आपको? अभी पूरा इसमें सिमिलरिटीज में लिखा मैंने, कुछ टेबल बना दिया, डिफरेंसेस का टेबल बना दिया। अभी गिव एटलीस्ट 4 आर्ग्यूमेंट्स टू रिफ्यूट ऋतिक फिलोसॉफी, गिव एप्रोप्रिएट रेफरेंसेस टू शातानी और रिफ्यूट। ये क्वेश्चन लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये क्या है, फिक्स है, इसमें कुछ आपको एप्लीकेशन नहीं। हाँ, Why is it important that Srila Prabhupada remains preeminent Diksha Guru? अब ये इसके लिए एप्लीकेशन क्वेश्चन, ये क्या है? एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको खुद लिखना पड़ेगा। ब्रीफली डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू करंट लॉ, ISKCON लॉ। डिस्क्राइब द एप्रोप्रिएट एटीट्यूड, हाँ, फॉर एन ISKCON गुरु इन रिगार्ड टू टीचिंग ऑफ Srila Prabhupada and authority structure within ISKCON। तो ये फिर ये आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये पूरा IDC में जो है, हाँ, ये अभी खुद का मन का एप्लीकेशन क्वेश्चन। Benefits of accepting Shiksha and Diksha within ISKCON and decisions of accepting Shiksha and Diksha outside ISKCON. Why should one accept Diksha and Shiksha Guru within ISKCON? तो मैंने 2 इसमें डिवाइड किया। बेनिफिट्स क्या है, डेंजर क्या है, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना। और फिर बाद में कंक्लूजन क्या है, श्रील प्रभुपाद रेफरेंसेस, आपको रेफरेंसेस देने रहते। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ वर्ड जो ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। हाँ, ओपन बुक श्रीमद् भागवतम, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन दिख रहा है? प्रभु जी विजिबल नहीं है अभी। एक मिनट, तो दूसरा पुराना आ गया, अभी आपको दूसरा शेयर। अभी आ रहा है? नहीं प्रभु जी। मुझे वो शॉर्ट फॉर्म वाला दिख रहा है। अभी आ गया। स्क्रीन इज शोइंग शॉर्ट फॉर्म पेज ओनली। अभी आ गया क्या? देखिए अभी नया डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया, हाँ आया हाँ, ना? yes, Yes, Prabhu. No, it's अब visible. ये भागवतम का क्वेश्चन है हमारा, भक्ति वेदांत जो मेरा हो चुका है, भक्ति वेदांत वैभव। इसके तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या है, जनरली इन ओल्ड एज अ पर्सन इज अलाउड रिटायरमेंट फ्रॉम द मंडेन सर्विस, but in the transcendental service of the Lord, service attitude increases more and more with the progress of age. Explain this concept of increase in service attitude irrespective of bodily constraints, both with philosophical scripture and real life example. तो इसमें तीनों एप्लीकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे सेम मेरा ग्रोसरी रहेगा एज इट इज।
अभी what we have to do now, you need not quote the entire verse. As mentioned in Bhagavad Gita 3.4, the soul is above the senses and mind. Just quote two word, इंद्रियाणि परान्य. बस पूरा का पूरा श्लोक मत डालो, आपके वर्ड चले जाएं. फिर अभी धीरे धीरे मैं उसको बिल्डअप कर रहा हूँ. फिलोसॉफिकल हो गया, फिर मतलब एज इट इज पर्पट नहीं, जो जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बिल्डअप करना पड़ेगा. फिर फिलोसॉफी के एग्जांपल स्क्रिप्चुरल क्या है, शिल माधवेंद्र पुरी, although very old, traveled, 6 गोस्वामी, शिल भक्तिनाथ ठाकुर, शिल प्रभुपाद, प्रैक्टिकल लाइफ. अभी मैंने यहाँ के इस्कॉन के शिल जयदेव प्रभु के बारे में लिखा है ना, कैसे वो करते हैं. डिवोटीज प्रोड्यूसिंग सीसी इंथुजियास्म, मतलब हमारे खुद के जीवन में रथ यात्रा में, जन्माष्टमी फेस्टिवल में इतना सेवा करता हमको याद पता नहीं था. कंक्लूजन, शिल प्रभुपाद देयर इज नो इंडिपेंडेंट फॉर सबिंदु लॉ. अब एक ढासू कंक्लूजन दे दी, समझ रहे, ये हो गया पहला. फिर क्वेश्चन नंबर 5, समझ रहा है ना आपको, क्या ऊपर से जा रहा है कि यूजलेस हो रहा है? अरे बोल, समझ रहा है प्रभु जी? समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? क्या बंद कर दो? नहीं नहीं प्रभु जी, समझ रहा है. वैसे आपको मैं आपको शेयर तो, मेरा क्वेश्चन तो आंसर तो दूंगा नहीं मैं, है ना, फोटो मत निकालना, ऐसे ही छाप लेंगे बस भक्ति वैभव में, है ना. Explain how to understand an apparent contradiction in the inconceivable pastimes of Lord Krishna. अभी देखो, इसमें आपको खुद ही करना पड़ेगा. अभी फिलोसॉफिकल कैसे करना है, फिर एनालॉजीज कैसे करना है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिए कि बाबा Lord's appearance. Although Lord is unborn, he appears in a prison in the home of Devaki. He comes to deliver his devotees and enact misery. Lord first appeared in the full Chaturmukh form and then he becomes the normal child. So Lord's fearful by comes now. Huh? So how this contradiction can be consolidated? Lord's fearful is by enemy. Example देखिए कि कैसे ये ऐसा होता है. Lord submitting explanation before Ugrasena. अटैचमेंट टू फैमिली एंड राइट, मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी को एक्सप्लेन कैसे करके दिया. लॉर्ड टेक कॉन्सेप्ट फ्रॉम उद्धवा, लॉर्ड्स डिसअपियरेंस, जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन है उसको हमने फिलोसॉफी डिस्कस. तीसरा प्रश्न, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग डाउन, रेफरिंग टू श्रील प्रभुपाद पर्पट 3:9-24. तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन है. अभी मैंने इंट्रोडक्शन क्या दिया, थ्रूआउट श्रीमद् भागवतम, अक्षतम और वैदिक स्क्रिप्चर, there are so many prayers offered by devotees to the Lord for glorification and personal protection in path of bhakti. ये हो गया 10 इंट्रोडक्शन. फिर अभी हम उसका पार्श्वभूमि बनाएंगे कि क्यों जरूरी है. अभी क्यों जरूरी है, देखो, as long as we are in the material world, we may come in contact with so many vicious living entities, situation, objects which we are beyond our control, and therefore unless one sufficiently is protected by the Lord, one may fall down from its future position any time, and therefore we have to pray him. अब इसका इंट्रो मैंने कंक्लूजन क्या लिखा होगा, हाँ क्या लिखा, इन कंक्लूजन we should be fully under the guidance of Srila Prabhupada, Vaishnavas, and yet constantly pray to the Lord and pure devotees for protection. I think इतना sufficient है आप लोगों को, है ना. ऐसे पूरे यूनिट के ओपन बुक्स है मेरे, पूरे भागवतम के बहुत लिखने पड़ते थे, हम बहुत लिखने पड़ते. अभी तो इतना शॉर्ट कर दिया, हमारे समय में बहुत करना था. अभी तो आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि हमारे भक्ति शास्त्र में भी बहुत किया था. अभी आपको आइडिया आ गया कि नहीं, कितने लोगों को फायदा हुआ है कि कैसे ओपन बुक लिखना है. कभी भी पूरा श्लोक लिखना नहीं है, पहले 2 एज रेफर्ड इन रेफरेंसेस को बहुत वैल्यू होता है. मैंने ऐसे सुना था, उसको आपको पूरा बड़ा फुल्ली मिलेगा. किससे सुना था और किससे सुना वो लिखना ही नहीं, स्क्रिप्चुरल रेफरेंस, क्योंकि कभी कभी बहुत गलत फहमियां होती. आपको सिंपल बोलता हूँ, काफी सन्यासी से भी गलती हुई है, प्रॉब्लम नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र में पहले हरे कृष्ण है कि हरे राम है, बताइए मुझे महामंत्र कैसे था, कौन इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, कौन देना चाहता है? अमित प्रभु बोलना चाहते हैं, बोलो. नहीं नहीं प्रभु जी. पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. वागेश्वरी माता जी बोलो, हाथों पर क्या. हरे कृष्ण प्रभु जी. पहले हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम से स्टार्टिंग होता था, मैंने सुना था वो. और तब मतलब चैतन्य महाप्रभु जब हरि नाम संकीर्तन का वितरण कर रहे थे, तो जो भी डिवोटीज मतलब जिन्होंने सेजेस उस वक्त के थे,
जिन्होंने मतलब बहुत ही मतलब तपस्या करके इस चीज़ का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने एक्वायर किया था, तो दे वर अपोजिंग कि व्हाई यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस हरि नाम इन फ्री। सो चैतन्य महाप्रभु से टोल्ड दैट आई विल चेंज द मंत्र, मीन्स उन्होंने हरे कृष्ण पहले कर दिया और हरे राम बाद में, तो सेजेस को लगा कि और उसका इफेक्ट कम हो एक कर और कुछ कर मैं प्रभु ये और रीजन मतलब और मतलब कि हमको बट दूसरा जो रीजन है और है कि फर्स्ट वी गेट मतलब कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, देन फर्स्ट वी गेट अट्रैक्टेड, देन वी हियर द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन, सो इन द सेम वे we first we chant means Hare Krishna and then Hare Ram, that means first attraction and then pleasure, ऐसा वाला सुना था। बस। और कुछ किसी को और कुछ ने कुछ सुना है तो मुझे बताओ, स्पेकुलेशन क्या क्या, ये टोटल रॉन्ग है, बताइए और हाँ किसी इसका क्या क्या। रेफरेंस कहीं देना ही प्रभु, ये सुना है लेकिन इसका रेफरेंस आज तक मैं मिला नहीं है। आपको एक बड़ा डॉक्यूमेंट देता हूँ, बड़ा डॉक्यूमेंट देता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्रा ही पहले है, हरे राम पहले करेक्ट था ही नहीं। करेक्ट। मेरे पास रेफरेंस है, ये कलित संतरण उपनिषद एक व्यक्ति ने कली संतरण उपनिषद, yes. ये गलत किया था। हमारे पास एक ऐसा कलित संतरण उपनिषद है जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र पहले है, और चैतन्य महाप्रभु के समय जो जो आचार्य ने हरे कृष्ण महामंत्र पे टीका लिखा है उनके बुक में भी हरे कृष्ण मंत्र पहले ही है। पहले अरे जब सार्वभौम भट्टाचार्य वर्ष बदलना चाहते थे, मुक्ति पदे से दयाभाग की जगह भक्ति पदे से दयाभाग, महाप्रभु ने बोला मत बदलो, शास्त्र में चेंज मत करो, तो महाप्रभु खुद चेंज करेंगे शास्त्र में? कभी नहीं। और ये सेम हरे कृष्ण मंत्र दूसरे शास्त्रों में आता है, अनंत संहिता में आता है, एक ही शास्त्र में नहीं आता है, बहुत शास्त्रों में आता है, स्टार्टिंग हरे कृष्णा ही है। मैं आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट उसके ऊपर दे दूंगा, तो कभी भी गलत प्रीचिंग मत करो। हरे कृष्णा ही पहले, हरे राम कभी नहीं था, समझ गया? और कुछ लोग तो बोलते सत्य द्वा और त्रेता युग बदल गया इसलिए हरे कृष्ण मत बदला। अरे बाप रे, क्या क्या स्पेकुलेशन है। इसलिए सुनने अभी ना नहीं, शास्त्र का रेफरेंस तभी हमारे सामने, तो मैंने ऐसा सुना था, सन्यासी का भी गलती हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि स्क्रिप्चरल के लिए आपको स्टडी होनी चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? नहीं डाउट? आप किसी को भी मत बोलना कि पहले हरे राम था बाद में चेंज किया, कभी भी नहीं, Yes, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा वो। हरे कृष्ण ही पहले है, हरे राम कभी नहीं थे। क्लियर? प्रभु जी सिर्फ ये क्लैरिफाई करना था कि माता ने जो बोला सेकंड रीजन की कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव एंड देन द क्वालिटीज राम, तो वो सही है, वो अंडरस्टैंडिंग। अरे बट राम तो भी कृष्ण का ही नाम है ना बाबा। Right. राम मतलब आपको श्री राम किसने बोला? राम मतलब राधिका रमन राम, बलराम भी नहीं। बलराम के साथ राधा कैसे आ सकती है भाई? Right. हरे बलराम हो सकता है? वो तो रसाभास हो गया। क्या हो गया? हरे के साथ कृष्ण ही रहता है, कोई नहीं रहता दूसरा। तो राम मतलब राधिका रमन राम, कृष्ण ही है वो, समझ रहे ना? ऐसा नहीं। तो पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, यही मंत्र सही। और जो राम है वो राधिका रमन राम ही है। लेकिन अगर कोई राम भक्त है तो उसको बोले हाँ राम भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम से ही सब, विष्णु से तो राम आए। लेकिन एक्चुअल आचार्य ने क्या दिया? राधिका रमन राम, नॉट इवन बलराम, नॉट इवन श्री, ओनली कृष्ण। राधा के साथ कोई दूसरा नहीं आ सकता। क्लियर? अमित प्रभु? यस प्रभु जी। हाँ माता जी पूछिए, दया नहीं माता। प्रभु जी, in general अगर हम देखें तो like outside ISKCON it is more common that Hare Rama 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 Hare Hare, and they also say that this is the original mool mantra. So मैंने भी what सुना, तो उनको हम दे सकते रेफरेंस। मैंने बोला ना कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने, मूर्ख व्यक्ति ने कलित संतन उपनिषद को गलत प्रिंट करवाया था, उसके कारण पूरे ये जगह पे फेमस हो गया। लेकिन ऐसी एक कॉपी कलित संतन उपनिषद की है जिसमें ओरिजिनल महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है? तो ऐसे लोगों को क्या बोलना है हमें? ठीक है ना, हरे राम पहले हरे कृष्ण पहले, क्या फर्क पड़ता है, सर्कल में ही तो है। समझ रहे? डोंट डू एनी आर्ग्यूमेंट विद देम। अभी लो लेवल का व्यक्ति वो कुछ भी मंत्र नहीं कर रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कर रहा है ना, करने दो ना। बाद में उसको नहीं पता चलता कि हरे कृष्ण पहले कि हरे राम पहले। वी शुड नो एम टू, किसको क्या बोलना है हमको पता चला। अभी जो कुछ भी नहीं कर रहा, हरे राम भाई बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बोल भाई। ठीक है? जो व्यक्ति को शास्त्र समझता है उसको बोल के। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं कि हमको सत्य हमेशा सबको बोलना ही है, बोलने की जरूरत भी नहीं। क्लियर? कोई बोलेगा राम श्रेष्ठ है कृष्ण श्रेष्ठ है,
अरे भाई राम बोला कृष्ण बोला भगवान तो क्या फर्क पड़ता, हाँ बोल रहे सही बोल रहे स्वामी। नहीं नहीं उसको बोले कि नहीं ईश्वरा परमा कृष्णा नहीं राम श्रेष्ठ नहीं कृष्ण श्रेष्ठ, हो गया भाई, मूर्ख का काम है। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बहुत डांटा था, बोले क्यों तुम ऐसा आर्ग्यूमेंट कर, हाँ? कुछ ऐसा न मत करो। जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं कि कोई भी भगवान का नाम ले सकता विष्णु का, लेकिन प्रभुपाद कभी कभी बहुत क्लियर बोलते हैं ओनली कृष्ण। कभी कभी एक परपट में है कि वन शुड बी ओनली अट्रैक्टेड बाय कृष्ण, बट जनरली बोलते हैं विष्णु राम नरसिंह सब सेम, क्योंकि सब उनकी बुक पढ़ेंगे। और जब धीरे धीरे पढ़ेंगे फिर वो जब प्रभुपाद से प्रेम करें तो बोलेंगे प्रभुपाद का मूड क्या है, ओनली कृष्ण, यस। तो इसलिए प्रभुपाद की बुक सबके लिए है, डीप भी है, आपको पता चलेगा बार बार पढ़ने के बाद कि प्रभुपाद क्या चाह रहे हैं। समझ रहे हो? डन। तो आपको छुट्टी दे दूंगा अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्येव च पितामहः पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय, की श्रील जय। प्रभुपाद की जय, ईशोपनिषद की जय। अभी आपको कुछ पता है क्या शेड्यूल क्या है एग्जाम का, भी कुछ पता है क्या? नहीं प्रभु नहीं जी। प्रभु जी, हाँ नहीं प्रभु जी, नहीं पता। नहीं नहीं आपका कोऑर्डिनेटर कौन है बैच का? कोई नहीं है? किरण प्रभु आप? आदि भगवान दास है ना प्रभु जी। हाँ हाँ, बट उनका सडनली उनको कैंसर हुआ था अभी बीच में, ओ तो उनका थर्ड लेवल पे था, उनका भी ट्रीटमेंट अभी मुझे उनको पूछना पड़ेगा, इसलिए आई थिंक ही माइट बी नॉट नोइंग एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ग्रो योर ओन फूड। कोई भी कैंसर का शिकार हो सकता, कोई भी कैंसर का शिकार ऐसा नहीं, ऐसा कि वेजिटेरियन को ज्यादा होगा क्योंकि पूरा कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं और सोच रहे कि हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। फाउंडर अच्छा ने क्या बोला, ग्रो योर फूड, पे द प्राइस पे है ना। फाउंडर अच्छा की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होने वाला, किसी का भी कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। एटलीस्ट आप जो ग्रो कर रहे हो उसको खरीद के आप खा लो, उसको सपोर्ट। तो आदि भगवान को से डिस्कस करता हूँ कि आपका श्लोका टेस्ट है, क्लोज बुक टेस्ट है। आई थिंक मुझे उनको पूछना पड़ेगा कि उनके पास समय नहीं लगता, मुझे लेना पड़ा। ठीक है, आई हैव टू हेल्प इन। तो अभी आप तुरंत क्या कीजिए, क्लोज बुक पूरा सॉल्व करना कीजिए और ओपन बुक लिखना कीजिए। विद इन 2 वीक्स आपको सबमिट करना पड़ता है। और श्लोका टेस्ट भी आपका 1 वीक में खट 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 मैं फिर ले लूंगा आपका। 3 डीओडी का 2 तो श्लोका है, फास्ट हो जाएगा हमारा, बड़ी बात नहीं। क्लियर? तो अभी श्लोक नेक्स्ट सैटरडे संडे आपका कुछ सेशन तो होगा नहीं मोस्टली, पहले तो आप प्रिपरेशन कीजिए। मोस्टली 1 वीक का गैप दिया जाएगा। हाँ श्लोका टेस्ट हो सकता, उसके लिए 1 वीक बहुत हो गया, लेकिन ओपन बुक क्लोज बुक के लिए मैक्सिमम 2 वीक आपको दिया जा सकता है। आई विल टॉक टू हिम। ठीक है, और किसी का कोई टाइम दिया कंसर्न? जाएगा ना प्रभु, दिस इज हाँ अलॉटेड हाँ टाइम पे ओपन बुक क्लोज बुक आप डेट टाइम फिक्स होगा ना, ठीक है। हाँ, वही बता रहा हूँ। I will discuss him and immediately announce only as soon as possible so that you can prepare your own schedule. डन। और किसी का कुछ क्वेश्चन है एग्जाम के बारे में और कुछ बारे में किसी का? प्रभु जी, ये जी जो हम प्रभु लोग जी। लिखते हैं वो, सॉरी प्रभु जी, लिखते हैं वो कंप्यूटर में लिखना है या हाथ से लिखना ओपन है? बुक बेस्ट है कि कंप्यूटर में लिखे तो अच्छा है, क्योंकि वो सेफ रहता है। कभी आपने हार्ड कॉपी दी तो भी उसका स्कैन कॉपी अपने पास रखो, कभी गुम गया तो वापस लिखना पड़ता है। आपने हाथ से भी लिखा तो भी आपको उसका एक स्कैन कॉपी करना चाहिए। क्लियर? और क्लोज बुक तो आपको ऑनलाइन भी, जो अगर ऑफलाइन इधर आते हैं तो उनको यहाँ पे एक बड़ा पेपर पेन दिया जाता है। ऑनलाइन है तो आपको खुद के पेपर पे लिख के तुरंत उसको स्कैन करके भेजना पड़ता है। दोनों अवेलेबल होता है। और कोई प्रभु जी प्रश्न? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे स्केड्यूल टाइम पे अगर अवेलेबल ना हो पर्सन, जैसे मैं अभी ब्राजील में हूँ, यहाँ पे अभी अर्ली मॉर्निंग है, इट्स ऑलमोस्ट 5 AM हाँ, तो नाउ। आपको आपके टाइम देखते हैं ना क्या टाइम है। तो अभी क्लास तो कर पा रहे हो तो एग्जाम भी दे सकते हो आप। प्रभु जी वो भी मोस्टली आज श्लोका था इसलिए, हाँ श्लोका था इसलिए क्योंकि कल मैं 24 आवर्स की फ्लाइट लेकर पहुंचा ही था। और कल अभी थोड़ी होने वाला है बाबा, कल नहीं होगा, अगले नहीं नहीं सैटरडे नहीं संडे को होगा जो भी। कल थोड़ी लेने वाला हूँ, आपको थोड़ा प्रभु जी टाइम देंगे ना। मैं कल पहुंचा ही था तो मुझे टाइम मिल गया आज के लिए। लेकिन आगे फर्दर मेरा डेली बेसिस पे ट्रेवल रहता है, तो अब मतलब श्योरिटी नहीं है कि उस टाइम पे मैं अवेलेबल हो पाऊंगा कि नहीं। हाँ तो ठीक है ना, वी विल सी ना, डोंट वरी। ओके ठीक है, और कुछ किसी का प्रश्न?
practical question. Done? So then we will stop here. So please forgive me if I have spoken anything wrong, which might have hurt to you. You get it from your ears. And if something is good, keep in your heart. Vancha kalpatrubhesha kripa sindhu patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्तों श्रील प्रभुपाद की जय। और एक बार मैं किसी के साथ रिलेशनशिप करता तो उसको छोड़ता नहीं है ना? ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। Good. Hare Krishna.